So it started, and now I welcome you all. So, how the great and warming welcome in our 11th Learn class, which is on the topic advanced interview communications. Okay, so in our today's session, we will see some advanced level questions which are asked in the interview communication. Okay, and basically, they check your attitude, they check your genuineness, and it also checks the kind of person you are. Okay, so these questions and what are those questions which checks you on these parameters, we will see about that, and what is the best approach to address such kind of questions, we will see that as well. Okay, so to see that, are you all interesting? Hmm? Okay, so with the great energy as you are showing here, let me start our today's session, and for that purpose I am sharing my screen with all of you. Okay, so once it becomes visible to you, please let me know. I'm sharing my screen now. Yeah, is it visible to everyone? Hmm? Okay, so let me make it in the presenter mode. Yeah, now it's clearly visible, right? So it's a job interview advanced communication. Okay, it means this is our today's topic, and it's the 11th session after, it means approximately after 11 weeks. Okay, it means it's the 11th week is going on since we have started this course and this program and this project, we can say. Okay, so we what new things we will see in this today's session? Mastering the STAR method. So, what is the STAR method? That is the new interesting thing. So, we'll see that, and also some tricky questions we will address. Okay, so get set ready to have some fun and interesting learning. So, I'm sorry, I already welcomed you all, and you also know me. That's I am a Ishwar Mori, and I am a life skill expert teacher at Planet Spark. But recently, I resigned there so that I can devote my time here and in my other projects also. Okay, so to better utilize my potential and time, I am devoting my time here. Okay, so let me continue the session. So let us see what will be the today's agenda. सो देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं. सो सबसे फर्स्ट एज यूजुअल आइस ब्रेकर राउंड विल बी देयर. ओके, जिसके कारण क्या होगा, आप सभी एक लर्निंग मोड में, लर्निंग फेज में आ जाओगे. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इंटरव्यूअर्स रियली लुक फॉर. इंटरव्यूअर्स बेसिकली जब भी इंटरव्यू लेते तो वो आप में क्या चीज देखते. ओके, सो वी विल सी अबाउट दैट. ऑल्सो वी विल सी द स्टार मेथड. ये स्टार मेथड क्या चीज है, इससे कैसे हम बेटर, इसकी मदद से हम कैसे अपने आंसर्स को अच्छे से दे सकते हैं, कैसे हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं, एंड हाउ टू हैंडल दोस ट्रिकी क्वेश्चंस. वी विल सी सम tricks about those tricky questions also. And after that, the mock interview. आप लोगों का फेवरेट, राइट? जिसमें आपको खुद पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, which will be one of the activity, right? Because I already shared with all of you that कि आगे आने वाले जितने भी सेशंस है वो सभी पार्टिसिपेटिव सेशंस रहेंगे, जिसमें आपको खुद enthusiastically पार्टिसिपेट करना है, और इस पार्टिसिपेशन से ही, एक दूसरे के फीडबैक से, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने से आप में जो है, आपके बिहेवियर में वो बदलाव आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, एंड एट द लास्ट you have to provide feedback on each other's performance. Because see, जस्ट मैं सिर्फ अकेला ही आपको फीडबैक दूंगा तो आपको ऑडियंस फीडबैक तो पता नहीं चलेगा ना, राइट? So to have the audience feedback, you also have to provide feedback on each other's performance. Okay, so this will be our today's agenda for whole of the class. Okay, so now we are starting with the icebreaker round. So are you all ready, everyone? Just drop the thumbs up, and we are starting the icebreaker round then. Oh, you all are ready? So let's have icebreaker round. Okay, so let me move and see. Let's enjoy.
the learning with some fun and interesting games. So, here is one game, and what is the name of this icebreaker round? Tell me something unpredictable. मतलब कि आपको इस गेम में कुछ ऐसी चीज बतानी है जो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब क्या प्रेडिक्ट करना है और क्या चीज बतानी है और किसके बारे में बतानी है, आइए जानते हैं उसके बारे में। So see, each student share one unexpected fact about themselves in 10 seconds. Okay? And what is the purpose of this activity? To warm up, to reduce the interview anxiety, and also unlock the spontaneity. मतलब कि देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, वो तो डेफिनेट है। अब एक्चुअली एग्जीक्यूशन क्या किस चीज का करना है? तो आपको कुछ ऐसी चीज बतानी है आपके बारे में कुछ ऐसा फैक्ट बताना है जो बाकी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जिस तरह का कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर को टोटली डिफरेंट सूट होने वाला अगर कोई फैक्ट है आपके बारे में, सो यू कैन शेयर अबाउट दैट, राइट? सो दैट पीपल लोगों को लगेगा कि सच में ये इंसान ऐसा भी है। हाँ, सो समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। यू कैन थिंक फॉर अ मिनट, 1 मिनट आप सोच सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आपको शेयर करना है। अब इससे होगा क्या बेसिकली, आप थोड़ा थिंकिंग मोड में आओगे। ओके, विचार करने वाले मोड में। उसके बाद अब इस देखो, जैसे हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर झांकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, एंड ऑल्सो इट विल अनलॉक योर स्पॉन्टेनिटी इन द परफॉर्मेंस। ओके, सो टू ग्रैब दैट वी आर प्लेइंग दिस गेम। सो आर यू ऑल रेडी एवरीवन? गेम क्लियर है सभी को? एवरीवन, एंड प्लीज एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा एंड माइक। ओके, and in case if there is background noise, in that case we can keep it off, but yeah, let's try to turn it on. Okay, I have done. I hope that most of the people have understood the game. सबको clear है game? हाँ? Okay, so you all have to participate. Just raise your hand. जो जो लोग अपना hand raise करेंगे, उन सभी को chance मिलेगा. So we are starting. You can raise your hands. Can you see the hand raise option there? Not ready yet. Still have. Okay, I am providing 1 minute to everyone. Uh, am I audible and visible to everyone clearly? Okay, so just participate everyone. Just raise your hand, okay? And share one fun fact. आपके बारे में कोई एक चीज आपको शेयर करनी है जो लोग आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. Something like that. Any interesting, any fun fact? Yes, yes, Apisha. Okay. So yes, myself Apeksha Ninge, and Hmm, here as per the icebreaker round task, so hmm, something unpredictable which others cannot predict. hmm, So whenever someone meets me at first, they think that I'm not a talkative person, but hmm, I'm a talkative person. And they cannot predict that I'm a talkative person. That is the fact hmm. about me. Yeah, right. Yeah, and I also have observed, since the time I know you, that people mostly think, and I think somebody also know you that, right? Most of the people in the library know that you may be the kind of person who talks very less or who is something kind of introvert person. But yeah, when you join in this course and everyone when saw your consistency and your continuous efforts to work on the task and everything, it completely proves the that discriminatory belief of people wrong, right? Yes, Samudit, you also know her, right?
Yeah, we Yes, don't yes. think that she can talk this much also, right? Okay, so who wants to participate now? Yeah, somebody. सो अभी अभी मेरे बारे में भी सेम ही फैक्ट है कि एज माई लोग लोग मुझे जज करते हैं कि ये बहुत डेंजर दिखता होगा क्योंकि मेरा लुक थोड़ा सा डेंजर टाइप का है। तो कॉलेज में भी जब फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स बने थे, तब हम्म। अब मैं अभी उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो गया। अब इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं उनसे पूछता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हाँ। तुमने मुझको देखा था तो तुमने क्या अज्यूम किया था, तो हाँ। बोले कि जब तुम्हें देखा था पहली बार तो तुम ऐसा लगे थे कि कोई डेंजर सा पर्सन है जो कि बहुत मारधार करता होगा, बहुत ही ऐसा या मतलब ऐसा वो सोचते थे। लेकिन अभी जब उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है तो उनको लगा, अरे ये तो अपने जैसा ही वो चिल है, ऐसा वो सोचते हैं अभी। yeah, right. And I also know that when I also saw you first time, I thought that ये तो मतलब कि एक villain type का ही लग रहा है, yeah. But when we saw you, actually, when we talked with you, when we met you, and when we actually realized that no, he is a different kind of person. Very friendly nature, very talkative, and very engageable person also, right? So that proves Yes, totally different that the kind of person you are looking, that's not exactly what you are, but you are something interesting, right? So yeah, yes, yes, अब दोनों ने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स को शेयर किया एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू एंड दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ दिस गेम एंड ओके एक चीज मुझे बताओ आपने जब अपने फन फैक्ट के बारे में शेयर किया सो आफ्टर शेयरिंग हाउ यू पीपल्स आर फीलिंग नाउ मोर हैप्पी राइट yes, एंगेजिंग क्योंकि देखो जब हम खुद बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम लर्निंग मोड में आ जाते हैं हमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है ओके एंड सी द पीपल्स हु आर जस्ट वॉचिंग एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इट उनको भी ये लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा इतने लोगों के सामने कैसे बात करूं क्या बात करूं ओके कुछ लोगों को लग रहा हो कि या आई थिंक since so many days I haven't talked with so many people. So मैं कैसे बात करूँ? But see, once just turn on your mic and camera और थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि yeah, it was really interesting. So yeah, yes everyone, you can also turn on your mic, camera and action. Yes, Mr. Mahesh, you want to participate now? Yes. Unpredictable what that means कि मतलब कि आपको ऐसी चीज बतानी है कि देखो यहाँ पे आप लोग हमारे बारे में एक इमेज लोगों के नजर में हमारी एक इमेज बनी रहती है राइट लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत बोलने वाला व्यक्ति होगा या फिर ऐसा लगता है कि ये कुछ ना बोलने वाला व्यक्ति होगा किसी की पर्सनालिटी को देख के ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं ये बहुत डेंजर इंसान होगा करेक्ट तो लोगों की एक ऐसी धारणा होती है कि हाँ ये जो व्यक्ति है इस प्रकार का है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज ऐसे फैक्ट होते हैं हमारे बारे में जो लोगों की जो धारणा होती है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं जैसे संबोधित ने अभी शेयर किया कि वो जिस तरह से दिखता है लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मारधाड़ करने वाला इंसान होगा बहुत ही मतलब कि गुंडे टाइप का लेकिन एक्चुअली जब हम उसके साथ मिलते हैं बात करते हैं और एक्चुअली उसको जानते हैं तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है ओके मतलब कि लोगों को लगता है कि ये डेंजर होगा लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि वो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है सो ऐसी कोई चीज आपके बारे में same as here. Uh, People also about me, they will think about me. He is also not freedom to each other. But after whenever they will communicate with me, they will definitely free with me. I also make the easy difference. And I am try to make my best friend. And whenever they will attach with me, they never to leave me. That is definitely. But they will thoughts they will thinking about me. He is not the free. But whenever they will talk to with me, I will definitely free with them. Oh,
दैट्स ग्रेट। इट मीन्स आप कहना चाह रहे हो कि लोगों को मतलब ऐसे लगता है कि नहीं ये जो है मतलब कि उतना एंगेजिंग पर्सन नहीं होगा, राइट? उतना फ्रीडम या फिर उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग पर्सन नहीं होगा, है ना? जेन्युइन फ्रेंडशिप नहीं दिखती स्टार्ट में, लेकिन जब वो आपसे एक्चुअल में बात करते हैं, जब आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या फिर बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये सच में जेन्युइन पर्सन है, राइट? Definitely. या या अंडरस्टूड, दैट्स रियली ग्रेट। या यस, एनीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट? मिस्टर मारुति, कोमल, Miss Sujata, among you peoples? Yes, Mr. Maruti, want to participate? Okay. हेलो। हाँ, आवाज येत आहे तुमची. मेरे को तो लोग बहुत यानी देखने में ये ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, और मैं जब बात करता हूँ तो लोगों को पता चल जाता कि मैं कौन हूँ। ओके, इट मीन्स देखते बराबर लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा इंसान होगा, हाँ? लेकिन ये जब बात बनता करते क्या तो पता है। चलता है कि पूरा मतलब कि फिर फिर अच्छे अच्छे की फट जाती। it's like that, yeah? Okay, it means कि totally different character, yeah? Oh, that's nice. Yes, anyone who wants to participate? Yeah, that was amazing fact about you, Mr. Maruti. Okay, so I think we can move on, right? Yeah, if anyone wants to participate, they can raise their hand. Otherwise, we are moving forward. Yeah. Okay, so just drop thumbs up once. Okay, so that we can move on. Okay, so now that's all about the icebreaker round. And now let me see what we have to learn. So see, बेसिकली जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, हमने बहुत सी चीजें लास्ट सेशन में देखी थी। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में देखा था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, इंटरव्यू की क्या बेसिक डिमांड्स होती है, ये सब चीजें हमने लास्ट सेशन में जानी थी, जो कि टॉपिक था लास्ट सेशन का कि इंटरव्यू कम्युनिकेशन के बेसिक्स। आज के सेशन में हम जानेंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चंस एक्चुअली आपको क्यों पूछे जाते हैं। ओके, व्हाट रियली इंटरव्यू वांट्स टू सी इन योर पर्सनालिटी। इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी में क्या चीज ढूंढना चाहता है जिसके लिए वो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। ओके, so let me see what really interview wants to see in your personality. So first of all, he wants to see clarity of thought. आपके विचार करने में कुछ क्लियरिटी है या नहीं है, या बस आप रैंडमली कुछ भी बात कर रहे हो, वो जानना चाहते हैं इंटरव्यूअर कि सच में ये जो व्यक्ति है ये क्या सच में एक डायरेक्शन में विचार करता है, या बस कि ये पूरा डायरेक्शनलेस पर्सन है। ओके, सो मतलब कि आपके विचारों में क्लियरिटी होनी चाहिए, ऐसे रैंडमली कुछ भी बात नहीं। सेकंड थिंग, कॉन्फिडेंस विथ कामनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, बट इंटरव्यू व्हाट दे सी, वो देखते हैं कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंट होना मतलब ये नहीं कि आपको जोर जोर से बात करनी है, चिल्ला चिल्ला के बात करनी है, या फिर बहुत स्पीडली फास्टली बोलना है। दैट्स नॉट द कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंट के साथ मतलब कि अपनी जो बात है उसको कंप्लीटली ओके और विद द एनर्जी बोलना, और साथ ही में आप में एक नम्रता मतलब कि कामनेस होनी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाट द इंटरव्यू लुक्स इन योर पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड आंसर। स्ट्रक्चर्ड आंसर मीन्स कि कोई भी जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस कर पा रहा है। ओके, हाउ, क्या सबसे पहले वो क्वेश्चन को समझ पा रहा है, समझने के बाद उस क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या उस क्वेश्चन के जो नीड्स है उन पूरे नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। ओके, मतलब कि क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराना, क्वेश्चन के मेन मुद्दे को इंट्रोड्यूस कराना, उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना, और लास्ट में कंक्लूजन क्रिएट कराना या फिर कंक्लूड करना उस टॉपिक को। ओके, क्या ये सिंपल सा फ्लो है उसके आंसर में, तो ये भी चेक करते हैं इंटरव्यूअर्स। और क्या चेक करते हैं, फिट फॉर द रोल या फिर कल्चर, मतलब कि जो कल्चर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, जो रोल आपको प्ले करना है, क्या उस रोल के लिए ये व्यक्ति सच में फिट है। तो फिटनेस भी देखी जाती है। फिटनेस मतलब ये नहीं कि आपके अच्छे से डोले शोले है,
क्या आप बराबर जिम जाते हो, क्या आपकी सिक्स पैक्स एब्स है? नो, फिटनेस इज नॉट अबाउट दैट ओनली। फिटनेस इज अबाउट क्या आप सही ढंग से वो जो रोल है, वो जो काम आपको एग्जीक्यूट कराना है, क्या उस काम के लिए आप फिट हो या नहीं हो, तो वो फिटनेस देखी जाती है। ओके। ऑल्सो दे चेक ऑनेस्टी एंड सेल्फ अवेयरनेस, मतलब कि ईमानदारी भी आपकी चेक की जाती है। क्योंकि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेईमान बंदे को तो रिक्रूट नहीं करेगी, क्योंकि उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है ईमानदारी से। आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार होते हो, दैट इज ऑल्सो रियली इसेंशियल इन का इंटरव्यू कम्युनिकेशन। ओके, इट मीन्स कि इंटरव्यूअर आपकी ईमानदारी भी चेक करते हैं, और आप कितने अवेयर हो खुद के बारे में, मतलब आपकी जो क्वालिटीज है, आपको क्या चीजें आती है, क्या चीजें नहीं आती है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेसेस है, क्या इन चीजों के बारे में आप अवेयर हो या नहीं हो, आप अपना समय किस तरह से गंवाते हो, या फिर किस तरह से स्पेंड करते हो, क्या आप इन सभी चीजों के बारे में अवेयर हो या नहीं हो, ये भी चीज चेक की जाती है इंटरव्यूअर्स के थ्रू। ओके। इट मीन्स कि ओवरऑल क्या चेक किया जाता है, कि आपका माइंडसेट क्या है, राइट। इट मीन्स माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट। भले ही आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो, इंग्लिश में आप छोटी बड़ी थोड़ी मिस्टेक भी कर दो तो उतनी दिक्कत नहीं जाती, बट आपका जो माइंडसेट है, आपका जो एटीट्यूड है, दैट मैटर्स अ लॉट। मतलब कि इंटरव्यूअर आपकी इंग्लिश तो चेक करता है, वो तो बाद में चेक की जाएगी, लेकिन पहले क्या चेक किया जाएगा, आपका माइंडसेट एंड योर एटीट्यूड। क्या, इज दैट क्लियर एवरीवन? हम्म। सो ये सब चीजें चेक की जाती है इंटरव्यू के दौरान किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी में। ओके। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में विद द some games. Okay, so I already shared one thing that कि आज हम देखेंगे स्टार मेथड, और स्टार मेथड हम यूज करेंगे किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो ये स्टार मेथड क्या है बेसिकली, उसे जानते हैं। सो सी, STAR स्टार मतलब क्या क्या दिया है। S से सिचुएशन, T से टास्क, A से एक्शन, एंड R से रिजल्ट। मतलब कि अगर आपको कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, तो उस ट्रिकी क्वेश्चन की पहले तो आप सिचुएशन बताओ कि क्या सिचुएशन थी, उसके बाद आपके सामने क्या चैलेंज था, ओके, या फिर क्या चैलेंज है, उसके बाद उस चैलेंज में आप क्या एक्शन लोगे, या फिर अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस पूछे जा रहे हैं तो आपने क्या एक्शन ली थी, एंड लास्टली उसका आउटपुट क्या आया, या फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। मतलब कि सबसे फर्स्ट आप सिचुएशन डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद आपके पास क्या चैलेंज है, उस चैलेंज के लिए आप क्या एक्शन लोगे, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा, राइट। सो दिस इज द सिंपल स्टार मेथड, शॉर्ट, सिंपल, बट पावरफुल। या, सो चलो जानते हैं इस स्टार मेथड को एक एग्जांपल की मदद से, ताकि आपको ये जो है स्टार मेथड ये क्लियर हो जाए। ओके। अब देखते हैं कि ये स्टार मेथड क्यों यूज करनी है, जानना चाहोगे? हम्म। ड्रॉप द थम्स अप if you wants to know about the star method. Okay, so let's see. देखो, सबसे फर्स्ट, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल है इसलिए हम यूज करेंगे। और ये क्या क्या चीजों के लिए हेल्प करती है, टू आंसर लॉजिकली, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका लॉजिक चेक करते हैं। इट ऑल्सो अवॉइड रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मतलब कि इधर उधर भटकना आंसर करते टाइम पे, और प्रॉपर क्वेश्चन को आंसर ना कर पाना। तो इस चीज से भी अवॉइड, मतलब कि इस चीज से भी बचा जा सकता है विद द यूज ऑफ स्टार मेथड। और इट शोज मैच्योरिटी। Is there any problem, dear friends? Okay, let me check. Okay, yeah, we can continue. Yeah, all clear now. Am I audible and visible properly? Okay, so let me continue. So see, it shows maturity. Maturity क्या है basically? See, देखो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो, उसे प्रॉपरली आंसर कर पा रहे हो, तो इंटरव्यूअर को तो एक बात पता चल जाएगी ना, कि ये एक प्रॉपरली मैच्योर्ड पर्सन है, इसको चीजें समझती है, ये चीजों को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। करेक्ट। इट मीन्स इट शोज योर मैच्योरिटी ऑल्सो, राइट। एंड ऑल्सो इट इम्प्रेसेस इंस्टेंटली। मतलब कि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर कर पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर, राइट।
सो ये सारे फायदे हैं स्टार मेथड के एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज स्टार मेथड। ओके, आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा कि स्टार मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम। या इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, that's good. Now let me move on and see a star breakdown in simple words. तो देखो सिचुएशन मतलब कि वेयर वेयर यू, मतलब कि आपको बताना कि हम मैं कहाँ पे था, किस पोजीशन पे था, कैसी सिचुएशन थी मेरी। ओके, मानो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने अपनी लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस किए हैं क्या, और उस चैलेंज मतलब कि मानो इंटरव्यू ने आपको क्वेश्चन पूछा कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था, आपने उसको कैसे फेस किया और आप उससे क्या सीखे। राइट, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा इंटरव्यूअर ने, ताकि वो जान पाए कि आप प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, आपके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। ओके, सो देखो आप आंसर कैसे करोगे, वेयर वेयर यू मतलब कि आप कहाँ पे थे, कैसी सिचुएशन में थे, आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है कि मेरे सामने ये मतलब कि मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन थी, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद टास्क क्या है कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि चैलेंज क्या है, तो आपको चैलेंज डिस्क्राइब करना है। ओके, ऑल्सो आपने उस कोर्स ऑफ एक्शन में मतलब कि आपने उस सिचुएशन में क्या किया, आपने क्या एक्शंस लिए, यू हैव टू टॉक अबाउट एक्शंस आल्सो। ओके, एंड एट द लास्ट यू हैव टू टेल कि लास्ट में क्या हुआ, उस पूरी सिचुएशन के रिजोल्यूशन के बाद, वो पूरी सिचुएशन हैंडल हो जाने के बाद क्या आउटकम्स आए, क्या निकला। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल सिचुएशन डिस्क्राइब करके आपको बताते आना चाहिए। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि आपके लाइफ का बड़ा चैलेंज बताओ, ओके, समथिंग इस तरह की अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, सो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप इस स्टार मेथड से आंसर कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? हम्म, हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, सो लेट मी सी सम ऑफ द एग्जांपल्स नाउ। ओके, सो एग्जांपल स्टार आंसर, अब देखो कि क्वेश्चन क्या है। टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड। ओके, इंटरव्यू ने पूछा कि हाँ भाई, ठीक है, सब कुछ तो हो गया, अब मुझे बताओ कि आपने अपने लाइफ में कोई चैलेंज फेस किया होगा, उसके बारे में बताओ मुझे। सो देखो आपको कैसे डिस्क्राइब करना है उस क्वेश्चन को, कि सबसे पहले सिचुएशन बतानी है कि देखो मैं जब स्कूल में था ना, तो स्कूल इवेंट हैड नो वॉलेंटियर्स। स्कूल में जब इवेंट चल रहा था तो उस पूरे इवेंट के लिए कोई वॉलेंटियर ही नहीं था, और बहुत सारे काम भी करने थे। एंड टास्क क्या था, आई वॉज आस्क्ड टू हैंडल द अरेंजमेंट्स। पूरे अरेंजमेंट को हैंडल करने का जिम्मा मुझ पे आ गया था, मुझे पूरे अरेंजमेंट को हैंडल करना था। अब आपने क्या किया, तो आपको एक्शन बतानी है, राइट। स्टार में आपने सिचुएशन बताई, राइट, स्टार मेथड में ऐसे सिचुएशन बताई। तीसरे आपने बताया कि टास्क क्या था, आपको पूरी अरेंजमेंट करनी थी, ये टास्क था। और आपने क्या एक्शन ली, कि मैंने आई क्रिएटेड अ टीम ऑफ 4, चार चार मेंबर्स की टीम बनाई, डिवाइडेड टास्क एंड हैंडल्ड अनाउंसमेंट। ओके, मतलब कि टास्क जो थे, जितने भी काम थे, कामों को डिवाइड किया, हर एक ग्रुप को मैंने एक एक काम दिया, और उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें अनाउंस कर दी, राइट। एंड एट द लास्ट रिजल्ट, कि उससे क्या हुआ, इवेंट वेंट स्मूथली। देखो एक भी वॉलंटियर नहीं मिल रहा था, मेरे अकेले पे पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने क्या किया, टीम में बांटा दोस्तों को, उसके बाद मैंने टास्क अलॉट किए, और उसके बाद वो पूरा काम स्मूथली हो गया। मतलब इतना बड़ा चैलेंज था कि एक भी बंदा नहीं था वहां पे, पूरा काम स्मूथली कर दिया गया, राइट। सो दिस इज हाउ डियर फ्रेंड्स you can answer with the help of star method to any kind of the tricky question. Yeah, simple था, impactful था। Yes everyone, yeah, so आप भी आंसर करना चाहोगे, because here is one activity coming for all of you, so get set ready everyone. Now one activity is coming for everyone and you everyone have to participate in that activity. So देखो ये प्रैक्टिस राउंड में, इसमें क्या करना है आपको, शेयर अ स्मॉल सिंपल सी अचीवमेंट यूजिंग स्टार मेथड। ओके, 30 सेकेंड्स में आपको अपनी अचीवमेंट्स शेयर करनी है।
ओके, आपने क्या अचीवमेंट की थी वो अचीवमेंट को शेयर करना है बाय यूजिंग स्टार मेथड। स्टार मेथड सभी को पता है कि सिचुएशन क्या थी, आपको वो बताना है, क्या चैलेंज था आपके सामने, चैलेंज मतलब टास्क, उसके बाद आपने क्या किया, एक्शन क्या ली, और उसके बाद क्या रिजल्ट आया। ओके, तो इस सिंपल 4 वर्ड वाले फॉर्मूले से आपको शेयर करना है आपकी, अब मतलब आपको शेयर करनी है आपकी कोई भी अचीवमेंट। यस, आर यू ऑल रेडी एवरीवन? हम्म, ओके, सो just raise your hands. Yeah, Apeksha, you can. And everyone, please turn on your cameras and microphone. Yes, sure. Okay. So, sir, can you please play that previous slide of star method? Yeah, sure. Just a second. Okay. So, Okay, please. Yeah. now I can continue. So, yes, myself Apeksha, and now Mm, I'm sharing my star method my experience using star method. So, I was in college, and it was a event of college orientation, campus orientation, and mm, the task was to give feedback of that program. The program was almost done, and the task was to provide feedback on that program. And there were very few students who were ready for it, and there was a need of many more students. And then I okay, so I took the initiative. I gave my name there, and I gave that feedback. And in result, um, I gave a good feedback, and everyone supported that also. So yes, thank you. yeah, that's really nice. That's really amazing. Yeah, and let me share some apple round of applauses for your explanation. It is, I think, yeah, it's a wonderful job. So basically, what you shared is really great. सी, जैसे कि तुमने शेयर किया कि क्या सिचुएशन थी, सबसे पहले तुमने सिचुएशन डिस्क्राइब की, राइट, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, वहां पे फीडबैक देना, करेक्ट, मतलब कि कॉलेज इवेंट था, तुमने सिचुएशन डिस्क्राइब की। उसके बाद टास्क बताया कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, कि फीडबैक देना था, लेकिन कोई भी रेडी नहीं था, चैलेंजिंग सिचुएशन थी। उसके बाद एक्शन क्या ली, कि तुमने खुद इनिशिएटिव लिया। मतलब कि ये एक्सप्लेनेशन ये डायरेक्टली ये प्रूव करता है इंटरव्यूअर को कि नहीं, ये जो पर्सन है ये इनिशिएटिव टेकिंग पर्सन है, मतलब कि कोई भी नई चीज ट्राई करने के लिए हिचकिचाता नहीं है, सामने से आगे आता है। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई कोई नया प्लान अगर आता है, तो उसको अगर मुझे स्टार्ट करना है, उसको अगर एग्जीक्यूट कराना है, तो यू कैन बी द बेस्ट पर्सन। ओके, सो ऑटोमेटिकली योर आंसर इज प्रूविंग दिस थिंग, करेक्ट। और लास्टली तुमने रिजल्ट भी बताया कि लास्ट में क्या हुआ, कि तुमने एक बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो पूरा ओवरऑल माहौल है, या फिर पूरी ओवरऑल जो वो पूरा ओवरऑल जो सिचुएशन फंक्शन है, उस पूरे सिचुएशन की जो हार्मनी है, वो हार्मनी भी प्रोटेक्ट हुई, राइट। मतलब कि तुमने पूरी सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया, करेक्ट, या, and also you you help the organization to work in a smooth manner, correct, so that was really good thing। मतलब कि ऑटोमेटिकली इंटरव्यू को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ, you are the genuine person who can be recruited for initiative taking process, correct, so that was really nice answer। Yes, anyone who wants to participate? और हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से ही क्या होगा कि आप का जो मतलब कि आप अगर इन्वॉल्व होते हो तो ही आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज द ओनली की टू जनरेट दैट ऑर्गेनिक प्रोसेस इनसाइड यू, राइट। सो या, हु वांट्स टू पार्टिसिपेट नाउ? यस, यस मिस्टर महेश, यू कैन। I am
sharing about my Hmm. last company experience. Hmm. At the time, at the time of when I will join there, Hmm. company having that means ESIC and EPF purpose notice has been raised in the company, and they have 7 years record. They will uh, Your voice is breaking, I think. hello. Yeah, you're audible. My last company experience I am sharing. Hmm. EPF and ESIC notice has been raised on the company. Hmm. They will ask 7 year record notice submit to office, and I check all records and and give you the correct answer to you. But I have no record of these 7 years. 7 years. Uh, I, I have read all the records, and I create all the records for that. I have very big challenge to me. I have because 7 years record is not the possible to create in within 7 days. But Hmm. I have make all the challenge and generate all the activity. Uh-oh. I think he left. Maybe some technical issues are going on his side. Okay, but we can see that he was sharing very nicely, right? He described the situation that the company was demanding ESIC and that I think yeah something that kind of EPFO records, correct? और उनके पास yeah, Mr. Mahesh, are you there? Okay, we got your point. Okay, don't worry. या सो सी आप कह रहे थे कि आपके और लास्ट कंपनी में आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछ रही थी ईएसआईसी एंड ईपीएफओ रिकॉर्ड्स के बारे में और वो भी 7 साल के लास्ट 7 इयर्स के ईएसआईसी एंड ईपीएफओ रिकॉर्ड्स के बारे में बट यू डिडंट हैड दैट राइट आपके पास वो रिकॉर्ड्स ही नहीं थे और आपको वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे रिकॉर्ड्स जस्ट 7 दिन में डिमांड कर रहे थे करेक्ट बट somehow you and it was really tough for you also to create all those records within just 7 days. But still, somehow you tried all of your hooks and crooks and created and found all those records, right? It means automatically this answer shows that आपने situation को describe किया कि situation क्या थी, right? उसके बाद आपके पास सामने task क्या था कि वो पूरे records आपको 7 दिन में करने थे. After that, ये तो आपने ये भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं था बट आपने वो किया मतलब कि इट डायरेक्टली शोज दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन अंडर प्रेशर यू calmly execute your work okay so you also shared the action part as well and at the last result will be maybe you have completed that successfully correct मतलब कि आपने स्टार मेथड से देखो एक इंटरव्यू को ये पर्सपेक्टिव दे दिया अपने इनर इंसाइट का कि देखो आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन मतलब कि मानो कि आप सिंपली कहते हो इंटरव्यूअर को कि जी मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ कौन विश्वास करता है आपकी बात पे करेक्ट बट व्हेन यू डिस्क्राइब द सिचुएशन विच यू हैव हैंडल्ड ऑलरेडी सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ इज द पर्सन लाइक दिस करेक्ट सो दैट्स टू नो यू इंटरनली कि आप अंदर से कैसे हो ये चीज जानने के लिए ही आपको कौन से ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट योर फ्रेंड्स या yes anyone wants to participate or shall we move on because time is also running on. Yes, Samodhi. So the main thing is that the challenges I faced was in the previous way in the previous week the our teacher told me that you have to done some research on this topic. They give some topic about I can't remember that topic.
But about the topic, in our we have a four friends group, but in our group no one will understand that how can we research and what is a white paper that the sir told us about. We you have to research on the white papers. What is why white papers? The main question is that what the sir says every the sirs say that you have to do this that type of task, but we can't understand. We can't do such type of thing in our life. But when we four friends meet and we talk about some senior whose name is Bhushan More, who told us that you have to go this website. The website name is that Yamuna Ganga. One website name is Ganga, and another one is the Yamuna. So at that time, we explore some new things, that how can we research, how can we get the information about some research topic which are currently ongoing on the research and which already publishes the research paper. And from that, we prepare our report and we present our report to the sir, and the sirs gives the feedback about us, and they appreciate our work, because it is kind of very difficult thing, because we are in the second year and we can't explore about some more about the research paper, but we did it. To sir applause it, and also the congratulations. Thank you. Right. That was really nice. Really nice work, dear Sambodhi. And you really deserve the applauses also. And okay, the way you answered what it represent basically, देखो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, इंटरव्यू क्या समझेगा ये इंटरव्यूअर को इससे, जस्ट ओके, लेट वी डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट। देखो सबसे पहले तो आपने सिचुएशन बताई कि क्या सिचुएशन थी। तुम कॉलेज में थे और टास्क असाइन हुआ था, करेक्ट। चैलेंज क्या था कि टास्क का जो टॉपिक है वो टोटली न्यू था। मतलब कि इंटरव्यू को ये पता चल गया कि सिचुएशन क्या है, कि फटाक से कुछ तो भी नई चीज आपके सामने रख दी गई है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो क्या ये एम्प्लॉय गिव अप कर देगा, क्या इसको रिजॉल्व करने का कुछ वे ढूंढ पाएगा। तो आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, इधर उधर से सभी डायमेंशन में सर्च किया कि कहाँ से इसको रिजॉल्व करने का रास्ता मिलेगा। एंड यू टुक हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, राइट। इट शोज दैट कि आप अपने सीनियर्स की हेल्प लेने में हिचकिचाते नहीं हो। आप अपने काम के प्रति जेन्युइननेस रखते हो, उसके लिए आप किसी के भी हेल्प करके अपने काम को कंप्लीट करने में बिलीव रखते हो, करेक्ट। उसके बाद आपने ये भी शेयर किया कि आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगा के, मतलब कि भले ही कैसा काम है क्या काम है, बट यू आर स्टिल फोकस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। आपने कंटिन्यूअसली अपना वर्क किया और उसके बाद काम को सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। मतलब कि ये चीज ये दर्शाती है कि आप एक गोल फोकस, मतलब कि फोकस्ड पर्सन हो। सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आपको कोई चीज असाइन की जाती है, यू ट्राई योर बेस्ट टू गेट द गुड रिजल्ट्स इन दैट सिचुएशन। Okay, it means you are really a genuine person to maintain the consistency in the organization. It proves that, correct. So this is how these tricky questions help you to it means helps the interviewer to know what you exactly are inside, correct. Yeah, yes, anyone who wants to participate now, or shall we move? I think we should move, otherwise it will take a lot of time. Okay, so we are moving on. Just drop the thumbs up once. I want your surety, everyone. Okay, so let me move on and see now what is there for us. So practice round तो हो गया हमारा अभी, right? So tricky questions, जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले देखा। Now let me see some common difficult question, जैसे कि what is your weakness, आपकी क्या वीकनेस है। Why should we select you, हम आप ही को क्यों सिलेक्ट है, बाहर में तो हजारों लोगों की लाइन लगी है, आप में ऐसा क्या है। इसे भी पूछते हैं इंटरव्यूअर। टेल मी अबाउट अ फेल्यूर, आपके किसी फेलियर के बारे में बताओ। अब खुद के मुंह से खुद की अवेलना करना ट्रिकी क्वेश्चन है, करेक्ट। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, हमें यहाँ पे कल का नहीं पता होता, ये तो 5 साल आगे का पूछ रहे हैं, करेक्ट। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है और इनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, आइए जानते हैं उनके बारे में भी। ओके, सो जस्ट सेकेंड, इंटरेस्टेड हो सभी? हम्म, ड्रॉप द थम्स अप।
या नाइस। सो लेट मी सी हाउ टू हैंडल वीकनेस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपकी कुछ वीकनेसेस बताओ, तो आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, आइए जानते हैं उसके बारे में। सो सी, मेंशन और रियल वीकनेस। अगर आपने सच में कुछ वीकनेस है, आपको दिखती है, आपको पता है, डेफिनेटली मेंशन अबाउट दैट। ओके, क्योंकि देखो, आपके शब्दों में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। और थोड़ी भी अगर बेईमानी हुई ना, वो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू को पता ही चल जाता है। आपको कुछ फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसे हजार लोगों को उसने पहले ही देखा हुआ रहता है। तो आपकी एक ब्लिंक ऑफ आई से उस पर्सन को पता चल जाता है कि ये पर्सन किस तरह तरह का कैरेक्टर है। ओके, सो डोंट ट्राई टू फूल द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ही ऑलरेडी नोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो डायरेक्टली बी जेन्युइन, जो आप हो वो आप हो, खुद को एक्सेप्ट करो, और जो आपकी वीकनेस है उसको भी आराम से बताओ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, शो व्हाट यू आर डूइंग टू इम्प्रूव। वीकनेस है ठीक है, बट उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, साथ में ये भी चीज शेयर करो। कमजोरी होना बुरी बात नहीं है, कमजोरी को रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ कर रहे हो ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। तब जाके आपको वीकनेसेस के साथ भी इंटरव्यूअर एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आप उस वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हो, आपको वो चीज भी शेयर करनी है। एंड कीप इट स्मॉल। बहुत लंबा सा स्टेज मत करो कि नहीं, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया है और मुझे इतनी सारी चीजें ये करनी है, ये करनी है, ये पूरे पहाड़ को मैं खत्म करने। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। पर मतलब कि इतना ध्यान में रखो कि आपको आंसर को सिंपल रखना है। इज दैट क्लियर? या और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, तो देखो, आई हैव नो वीकनेस। डायरेक्टली ये बोलना कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझे तो भगवान ने ऐसे बनाया कि पूरा परफेक्ट। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड सेइंग सच काइंड ऑफ बोल्ड सेंटेंसेस। ओके, मतलब कि आई हैव नो वीकनेस कहना ये भी अपने आप में एक वीकनेस है। अगर आप कहते हो कि मुझ में कोई वीकनेस नहीं, तो यही एक वीकनेस है कि आप खुद के अंदर की कमियां नहीं देख पाते हो। राइट, ये भी एक तरह की वीकनेस ही हुई ना, कि आपको अपने अंदर की बुराइयां नहीं दिखती। बुराइयां कहने से बेटर है कि वीकनेसेस नहीं दिखती। राइट। सेकंड थिंग, अगर आपको वीकनेसेस ही नहीं पता तो आप खुद के ऊपर वर्क ही नहीं कर सकते ना। इट मीन्स एट द टाइम व्हेन यू से आई हैव नो वीकनेस, आप ये भी उसको खो देते हो कि आप में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हो सकते हैं। करेक्ट। एंड ऑल्सो आई वर्क टू हार्ड, ये कहना भी, मतलब ये फेंकना इंटरव्यू में, वो भी अवॉइड करो, क्योंकि फेंकी हुई चीज डायरेक्टली समझ में आ जाती है उनकी कि ये बंदा फेंक रहा है। ओके, तो फेंकना बंद करो। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि कैसे हमारी वीकनेस को हैंडल करना है। जैसे देखो यहाँ पे, आई यूज टू हेजिटेट स्पीकिंग पब्लिकली, सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग 1 मिनट सिंपल डेली टास्क। ओके, टास्क कंप्लीशन, जैसे कि हम ग्रुप में कर ही रहे हैं। तो देखो, इसमें क्या वीकनेस शेयर की है कि मैं पहले लोगों में बात करने से थोड़ा हिचकिचाता था, हेजिटेट करता था। लेकिन मैंने क्या किया है, डेली ना मैं एक टास्क कंप्लीट करता हूँ लोगों के साथ बात करने का, या फिर मैं 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे किस तरह से दूसरों के साथ बात की जाए। ओके, मतलब देखो, आप में वीकनेस तो है, आपने एक्सेप्ट किया, बट ऑल्सो यू श्योर दैट कि मैं इस वीकनेस को काउंटर भी कर रहा हूँ। मतलब कि ये वीकनेस मेरा लाइफ लॉन्ग के लिए पार्ट नहीं रहने वाली है। I am reforming from that, right? I am updating from that old version. Correct? So this is how you can handle your weakness question. Is that clear, everyone? समझा आपको कि कैसे वीकनेस क्वेश्चन को एड्रेस करना है? Yes, that's great. Okay, so now let me move on and see some more things like handling. Why should we hire you? हम आप ही को क्यों सिलेक्ट करें? बाहर में तो हजारों लोगों की लाइन लगी है, क्यों हम आप ही को सिलेक्ट करें? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए? देखो, सबसे पहले तो बताओ कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, क्या पॉजिटिव चीज है। आप एग्जाम्पल्स भी शेयर कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ की। एंड ऑल्सो आपको ये भी शेयर करना है कि आप किस तरह से फायदेमंद हो उनकी कंपनी के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। राइट। फर्स्ट, खुद की काबिलियत बताओ। सेकेंड चीज, प्रूफ दो एग्जाम्पल का। थर्ड चीज, उनके लिए कैसे फायदेमंद हो। राइट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई लर्न फास्ट, I am disciplined and I handle responsibilities well. यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या बताइए कि मैं जल्दी सीख लेता हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, और क्या एग्जाम्पल दिया है,
आई हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल करता हूँ, ये भी एक स्ट्रेंथ ली है। ओके, एंड आई विल ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू योर टीम। और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं एक कंसिस्टेंसी दे पाऊंगा क्योंकि मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ। ओके, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा मेंटेन कर पाऊंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो हमेशा जो जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो ऑप्टिमिस्टिकली कंप्लीट होता है, राइट। सो इस तरह से मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मददगार साबित हो सकता हूँ, हेल्पफुल साबित हो सकता हूँ, तो जिसके लिए आपने डेफिनेटली मुझे हायर करना चाहिए, मुझे आपने सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन एड्रेस द वाई क्वेश्चन ऑफ hiring you. Is that clear? Yeah, thank you for matching. Now, a mock interview. Are you all ready, everyone? मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी हो सभी? ओके, सो देखो फॉर्मेट क्या है। इसमें वन स्टूडेंट एज अ कैंडिडेट, वन एज अ इंटरव्यूअर, टू थ्री क्वेश्चंस विल बी देयर एंड इमीडिएट फीडबैक विल आल्सो बी देयर। अब देखो इसमें बहुत सारी, मतलब कि लोचा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि हमें परफेक्ट आंसर देना है। ओके, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, उस प्रैक्टिस से हमारी इंप्रूवमेंट होगी। परफेक्ट आंसर देने के पीछे नहीं देखना है, जस्ट प्रैक्टिस इट, यू विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। ओके, सो let we make group. Okay, group say I think it will take much more time because already we are near to the ending of our time. Okay, so randomly जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकेगा इस इंटरव्यू में। ओके, सो here is the question scenarios. स्टूडेंट आंसर, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शेयर किए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, fun achievements using STAR method. I think here is the answer only. Okay, so let me share that first value slide with all of you so that you can answer those questions. And देखो इसमें आपको फिर फीडबैक भी शेयर करने हैं एक दूसरे के। Just a second, let me look out for that slide, questions वाली slide. I think it's went out. Yes, this one. Okay, so are you all ready for mock interview? Yes, everyone. Hmm? Okay, so जो हैंड रेज करेंगे उन्हीं को चांस मिलेगा। ओके, आई विल नॉट फोर्स ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। ओके, जो कोई ट्राई करेगा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग विद द टाइम। ओके, सो जस्ट हम 2-2 मिनट का इंटरव्यू लेंगे सभी का, एंड सभी को पार्टिसिपेट करना है। सभी के लिए मानो कि एक ही क्वेश्चन है। लेट मी सिलेक्ट दैट क्वेश्चन कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? 5 साल में आप खुद को कहाँ पे देखते हो? ओके, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मीनिंग मतलब कि क्या पर्पस है ये क्वेश्चन पूछने का, कि क्या आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, क्या आप लॉन्ग टर्म सोच रख पाते हो, क्या आप लंबे समय तक सोच पाते हो, मतलब लॉन्ग टर्म विजन रख पाते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन इज वेरी essential for any organization to maintain consistency and sustainability. ओके, तो वो एटीट्यूड अगर आपके बिहेवियर में भी हो तो that will definitely help the organization for its sustainability, right? So yes, that will be our question कि where do you see yourself in 5 years? So you have 1 minute time to think about it, and you can raise your hand after that, and we will give chance to every person who wish to participate. So once you get ready, just raise your hand. Yes, everyone, trying to think. And yeah, please turn on your cameras so that we can enjoy the session. Yeah, that's nice. Everyone try to turn it on. Yeah, yes, Apeksha, you are ready? Yes, sir, Okay, I am ready. okay, sure.
What happened? Nothing, sir. Okay. Okay. I was just canceling the noise. So, Mhm. yes, myself, Apeksha Nimji. And the question is that where do I see myself in 5 years? So, answering to the question, in 5 years, I see myself practicing in an hospital as a nurse because my course itself is of 4 years. So, after those 4 years, I see myself in after 5 years, I see myself practicing in a hospital. That's nice. It means you are thinking that you will successfully complete your all the course, right? With the flying colors, correct? And after that, you will be well renowned and will practice and will experience. Not that within 5 years you won't be the well experienced person, but yeah, you will be the nurse who is very we can say that very much learned and practiced in Good. her course. Yeah, and who is Yes. also very devoted to her duty. Something that kind of person you want to see yourself, right? It means the devotion to duty you want to share. Okay. So yes, I anyone? said yes. Yeah. And also see, I'm sharing here one thing. The peer feedback slide is there. It means कि बाकी लोगों को भी फीडबैक शेयर करने की परफॉर्मेंस कैसा था कि सच में जो स्टार मेथड की मदद से आपको इंटरव्यू ये जो क्वेश्चन है उनको एड्रेस करने के लिए ट्राई करना है सिचुएशन डिस्क्राइब करके आफ्टर दैट टास्क क्या है ओके आई थिंक आई शुड आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन दैट विल बी मोर creative for you guys to answer also right so let me give you a different question just a second let me let me discuss about that same question that weaknesses wala question okay share about your weakness okay anyone weakness yeah okay and yeah other participants you have to you also have to provide the feedback so yeah who wants to participate now So I want. yeah sure somebody So hello, comrade. So I am Sambodhi Devanand Chavan. So my weakness is communicating in an English language. I'm very nervous when someone says that you have to speak in English and you have to give given this topic. So at that time, when I am going to the stage, then I'm a pretty nervous and some some words are not coming properly. Some jumbling of the sentences, and there is a mixture of the tenses. Like I mix with simple tense, present tense, on past, future, and also there is a kind of mixture thing is happen. So that is my weakness. okay and you can also share that what you are doing to improve that yeah because just sharing weakness it's not the complete answer sharing that I am improving I'm trying to erase that the to fade that weakness within few time within So upcoming time currently for this weakness, I was creating some 1 minute video. So and I was talking in English language, so that the fear to talking in English language is get erased, and I am confident to speak in English language. And also I will try to watch some English tutorials so that I understand that how can I talk in English with the proper tenses also right and using verbs definitely also. yeah definitely that's the complete answer that's really nice answer yeah you shared it really amazingly and actually that's what's exactly happening with you also correct it means we in the feedbacks also you are getting some feedbacks to slowly work on your grammar also okay you don't need to pay much more attention on grammar slowly with gradually you can just devote 5 to 10 minutes on daily basis or we can say on weekly basis also correct on weekly basis also if you view just 10 to 15 minutes okay let's consider that in this week you just saw about tenses for 10 minutes 10 to 15 minutes okay just practice on tenses only for whole of the week correct after that for next week
Just see the sentences, structure of sentences, and work on that for whole of the week. Okay, just 5 to 10 minutes, and automatically you will see the drastic changes in your personality. And exactly same is going on also, right? Correct? Yes. Yeah, and you are also doing that those tasks also that is also improving, and that is also helping you to improve your English communication. Correct? So that was very nicely you. That's really nicely you share your answer for that tricky question. That's really amazing. Yes, anyone who wants to participate, or shall we move? You can also provide feedback. Yes, anyone? Yes, Apeksha, you can. Okay. So now I am giving feedback on Sambhad's performance. So my feedback is that he explained very well. The confidence level was very good. That was the strong point. And he shared that he's weak in tenses and grammar and all. That was Hmm. also a good point that he shared. I mean, he mentioned the weakness correctly. So that Hmm. was good. And I think there was no negative point. And improvement point as such, no. This is It was good, right? Yeah, sure. Yes, Sambodit, you can also share your feedback on Apeksha's performance. So Apeksha's performance is he is very nice. He shared where he want to see after 5 years and in a little bit shorter way so that the interviewers understand properly where he want Right, to see where he will see after 5 years. So right, so it is good. right. That was really nice. Correct? It means short, simple, and simply understandable. Correct? That was the great thing. Right. So that's what about the mock interview round which we have just practiced. Okay. And I think we should move on to the next thing. Okay. Because time is running. Okay. So let me move on and see interviewers check. We already saw this in the last session also. Correct? Interviewer क्या देखते हैं आपकी performance में वो हमने last session में भी देखा and also at the starting of the this session also we saw that. Correct? वो clarity देखती है आपका confidence देखते हैं आप में क्या ईमानदारी है वो चेक किया जाता है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन स्टाइल आपका एटीट्यूड एंड हाउ यू रिएक्ट अंडर प्रेशर जब प्रेशर होता है वर्कलोड होता है उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो दैट थिंग आल्सो इज चेक्ड बाय द इंटरव्यूअर्स करेक्ट मतलब कि इंटरव्यूअर ये सब चीजें देखते हैं ना कि सिर्फ इंग्लिश की का ग्रामर करेक्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में बस यही रहता है कि नहीं इंग्लिश में इंटरव्यू है मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा और बाकी ये जो मेन कोर चीज रहती है उसे हम भूल ही जाते हैं करेक्ट सो these are the main core things, domain parts, wherein we must pay much more attention as compared to paying attention on grammatical mistakes or those things. Yeah, those things are also essential, but these things are more essential than them, right? It means they do not expect perfect English, they expect these things first, right? So this was what the crux of this session. अब देखते हैं कि आपको पूरे हफ्ते भर में क्या प्रैक्टिस करनी है क्या चैलेंजेस रहेंगे ओके सो डेली टास्क में मोस्ट ऑफ द टास्क ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे ओके पूरे हफ्ते के लिए ट्रिकी क्वेश्चन ही रहेंगे ऐसा नहीं मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको आंसर करना है विद द यूज ऑफ स्टार मेथड राइट एंड दैट्स हाउ वी विल ग्रो एंड वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग ऑन करेक्ट सो ये आपकी असाइनमेंट रहेगी अब आपका क्या टास्क है तो आपको जस्ट इस जर्नी के साथ जुड़ के आपकी जो प्रैक्टिस है आपकी जो डेली टास्क है उनको ईमानदारी से कंप्लीट करते रहना है मतलब कि मेन नीड क्या है इस सेशन की इस कोर्स की कि आपको कंसिस्टेंट रहना है आपको जेन्युइनली आपके टास्क कंप्लीट करने हैं दैट्स व्हाट द ओनली नीड ओके एंड यू विल ऑटोमेटिकली सी द चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी आपके पर्सनैलिटी में चेंजेस आपके बिहेवियर में चेंजेस आना दैट विल बी जस्ट द मैटर ऑफ फ्यू डेज एंड फ्यू टाइम ओके बट उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है मेन कंडीशन क्या है कि आप ईमानदारी से अपने टास्क को कंप्लीट करो जो लर्निंग सिखाई जाती है उसको अडॉप्ट करते रहो राइट सो
That's what we had for today. And I hope that you also know about the fees and all. हमारे कोर्स की फी है 400 रुपीज पूरे कोर्स की। ये फीस सिर्फ इसी कोर्स के लिए। अब ये फाउंडिंग बैच है इसलिए इसमें पर सेशन 25 रुपीज फीस है। जिसमें कि फाउंडिंग बैच ऑफर में और क्या ऑफर है कि अगर आप अपने 3 नए फ्रेंड्स को पेड फ्रेंड्स को अगर लाते हो तो आपको फ्री सीट्स मिल जाएंगी। एंड दिस इज द क्यूआर कोड for paying the payment. Okay. Till now, I am not desperately asking for money. Okay. After completing the whole course complete हो जाने के बाद भी आप पे कर सकते हो. Okay. ताकि most of the people जो है वो एक्चुअल में सेशंस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस तरह से लर्निंग होती है, ये चीज जान पाए। इसलिए हम हर बार सिर्फ पैसे के लिए डिमांड नहीं कर रहे। ओके, बट या एज अ token of thanks or vote of thanks, you can pay when you wish to pay that, right? So there is no compulsion to pay at any time. Okay, and it's now a query time कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, you can ask here. Is there any questions there, friends? If no question, you can directly drop the thumbs up. Yes, no questions, no questions, no questions. Yes, Mr. Maruti, do you have any queries? I think he also don't have any questions. Okay, so let me move on and see now. And already we have completed most of the parts. And let me see कि what are the key takeaways. आज के सेशन की key learnings क्या है? You are becoming interview ready, right? Okay, let me see. कि you are becoming interview ready. Every answer you practice today is a step toward real world confidence. ये तो जस्ट रीडिंग होगी, मतलब कि देखो एक्चुअल में क्या है कि एवरी सिंगल स्टेप आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, उस हर एक टास्क के साथ आप क्या रहे हो, आप रेडी हो रहे हो आने वाली हर सिचुएशन के लिए, आने वाले हर कॉन्फिडेंस के चैलेंज के लिए। नॉट जस्ट इन द इंटरव्यू बट ऑल्सो इन योर रियल लाइफ। आप रियल लाइफ में आप जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, उनके साथ बात करोगे, उनके साथ कनेक्ट करोगे, आप इंटरव्यू में भी अगर लोगों के साथ अपने इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे किसी भी अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पे आप में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो कम्युनिकेशन का स्टाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस चीज की प्रैक्टिस आप हर एक टास्क के साथ यहाँ पे कर रहे हो। नो डाउट आप यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक करोगे। यहाँ पे मिस्टेक करने के लिए हमें डरना नहीं है। ओके, क्योंकि मिस्टेक्स यहाँ पे करेंगे, इम्प्रूवमेंट वहां पे दिखेगी, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करोगे, यहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस करने से डरोगे, तो ये एक बात की तो गारंटी है कि आप डेफिनेटली वहां पे जाके मिस्टेक्स करोगे। तो कौन सी चीज आपको पसंद है, यहाँ पे इम्प्रूव करना और वहां पे मिस्टेक, वहां पे एक्सेलेंस परफॉर्मेंस शो करना? चॉइस इज योर्स। ओके, सो डू योर डेली टास्क, कंप्लीट देम एंड you will see the change. So with this great note, we are at the end of our session, dear friends. I hope that you all enjoyed the session. सबको पसंद आया session? Okay, I know that for last few sessions I haven't provided the feedback form also. Okay, but for this session I will try to send one feedback form also so that you can provide your valuable feedbacks. That will be very helpful for us to improve and to serve you in a better mode. Okay, so that's all we had for today, and now it's time to say bye bye. So goodbye to everyone. Thank you for attending the session and listening me patiently. Have a great day and bye bye to everyone. Yeah, take care of yourself and enjoy your time. Now I am ending the session. Okay, so thank you.